اس زہریلی بیماری نے بلکہ شہر حیدرآباد تلنگانہ ہندوستان ہی ایسے دنیا کے کئی ایسے دیشوں کی کمر کو دی ہے. اس زہریلی بیماری کی وجہ سے ہم لوگ کافی مثبت مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں. تلنگانہ ریاست اور ہندوستان میں ہندوستان کے پرائم منسٹر نے 22 مارچ کو جنتا کرفیو کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد لاک ڈاؤن پورے ہندوستان میں تھا. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے پورے دنیا میں جسے 135 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے، مگر اس ہندوستان میں کئی ایسے غریب غربا لوگ بھی ہیں جو روز کام کر جیتے ہیں. خاص کر کے ہم بات کرتے ہیں شہر حیدرآباد تلنگانہ ریاست کی، جہاں پر تلنگانہ ریاست کی قریب 4 کروڑ کی آبادی ہے. شہر حیدرآباد میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں روز کام کر زندگی کو گزارتے ہیں، پر مسلسل ایک مہینہ سے زیادہ ہو چکا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران کئی ایسے غریب غربا اور مڈل کلاس کے فیملی لوگوں کو کافی مصیبت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسے تو کئی تنظیمیں سامنے آ کر غریب عوام کو مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پر ہر بار کی طرح ہر وقت کی طرح جامعہ اسلامیہ کی جانب سے بھی جماعت اسلامیہ کی جانب سے بھی ایسے ہی یہاں پر کئی جگہ پر کئی غریب غربا لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے راشن. تو ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں ذمہ دار شخص صاحب جو آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہے کیسے ہے اور اکثر کہاں پہنچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جماعت اسلامی چندہ گٹا کی جانب سے اور الفیض سوسائٹی چندہ گٹا کی جانب سے تمام جس دن سے لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہوا 24 سے ہم نے پھر آ کر پورے کام کر دیا. تقریباً سی بلاک، بابا نگر سی بلاک، بی بلاک، بالا نگر، بالا پور اور نصیب نگر، پھول باغ، گلشن اقبال کالونی اور تقریباً خاشم آباد، غوث نگر، اسماعیل نگر، تقریباً پورے ہم یہاں کے اسلام ایریاز کو ٹارگیٹ بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا جو ذمہ دار ہے اس کے یہاں پر اسلام ایریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً یہاں کے جو ڈیلی ویجز کام کرنے والے لوگوں کو ان تک یہ راشن کی پہنچانے کا کام کیا. اور ان لوگ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے فیملیز کے پریشانیاں اور ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، 2 دن سے کھانا نہیں ہے، وہ اپنی تکالیف سنا رہے ہیں فون پہ. تو فوری ہمارے ذمہ دار ان کو کال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ورکرس ہیں اسٹوڈنٹ اسلامی آرگنائزیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو بھی کارکنان ہیں وہ بھی ان تک گھر کو جا کر ان کے کٹ کو پہنچاتے ہیں. ایک چیز میری سوال آپ سے جماعت اسلامیہ کی جانب سے جو رہا ہے، لاک ڈاؤن کے درمیان یہ بات چل رہی تھی اور اب ماہ رمضان کا مہینہ جو آج شروع ہونے والا ہے، کل سے ماہ رمضان کا، تو اکثر ہم دیکھا جاتا ہے کہ پرانے شہر کے علاقے میں کئی ایسے غریب غربا ہے جو مڈل کلاس فیملی ہے، جو اپنا چہرہ سامنے بتانا نہیں سکتے اور کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، کیونکہ غریب لوگ تو کہیں نہ کہیں دنیا کی آرگنائزیشن سے لوگوں کو ملتا ہے. خاص کر کے ہمیں جو اطلاع مل رہی ہے مڈل کلاس کے فیملی ہے جو کام کر کے جیتے ہیں، مڈل کلاس میں وہ لوگ بولنے سے مجبور ہو جا رہے ہیں اور انہیں کافی جگہ پر ان کو ایسا مدد نہیں ملتی. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں اور جو روزگار ہے اس بارے میں آپ کا آرگنائزیشن کی جانب سے کیا بات ہے؟ دیکھیے ویسے لوگوں کو خاص طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے. ہمارے ارکان اور کارکنان ان کے ماتحت جتنے بھی افراد کو جانتے ہیں اور ان کے جو بھی جاننے بوجھنے والے ان کے آزو بازو کے جو لوگوں سے حالات معلوم ہو رہے ہیں ان کے بلا پوچھے ان تک کٹ پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ مساجد کے جو امام ہیں، مؤذن ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ مساجد کے جو مصلیان ہیں اور ان کے مصلیان کے جو جاننے والے ہیں وہ ان کے جو فیملیز ہیں ان کے تعلق سے جانتے ہیں کہ ان کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ کس طریقے کا ہے. تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے اور ان تک جو ان شاء اللہ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے تو ان تک ہم چیز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب اچھی بتائیے کہ اکثر ہماری ٹی وی 11 کے ذریعے کئی ہمارے کو کال بابا نگر سے بھی آئے ہیں، حال ہی میں جو پیشے سے ٹیچر ہے، فیملی ٹیچر ہے اسکول کے، اور کوئی دوسرے لوگ بھی ہیں ہمارے کالج میں ہے کہ ان کے اطراف میں کئی لوگ شناخت کر کے بانٹ رہے ہیں مگر ان کے پاس کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہے اور وہ کہنے کے لیے شرما رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کی تنظیم مدد کر سکتی ہے؟ ہاں ضرور، انشاءاللہ آپ ایسے لوگ ہیں تو ہمارا نمبر فارورڈ کیجیے. ہم بھی ان کے تعلق سے جو بھی نمبر آ رہا ہے ہم تحقیق کر رہے ہیں. کچھ فیک بھی نکلے ہیں اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفیکیشن کر چکے ہیں. دوسری جگہ سے بھی ہمارے کو بھی کال کریں، پھر ہم ان کو ایسے لوگوں تک بھی ہم ان کی 1 منٹ 2 منٹ کی تذکیر کریں. ہم یہ بولیں کہ بھائی آپ سے زیادہ جو
मुतासिर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनका ख्याल रखिए, आप ऐसा मत कीजिए तो उन लोग भी बोले कि ठीक है साहब, आप दूसरों तक पहुँचा दीजिए और हमको ज़रूरत नहीं। हम उनको बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके हम उनका दूसरों तक पहुँचाए। खास करके जामिया इस्लामिया की जानिब और ईसाई और जो आदमी शुरू हैं ऐसे तंजीमें आप लोग जो नौजवान हैं, आप लोग की कमेटी मिलकर खास करके ये अतराफ़ के लिए को आप लोग टारगेट करके तफसील कर रहे हैं या सारे हैदराबाद में, शहर हैदराबाद में तकरीबन 1.5 करोड़ का अभी तक राशन तकसीम हो चुका है लॉकडाउन से अभी तक। अभी रमज़ान के लिए भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 1 करोड़ 1.5 करोड़ का अभी हमने बजट बनाया है रमज़ान किड्स के नाम से, तो वो भी इंशाल्लाह हमारे जिम्मेदार उसको फिगर आउट कर रहे हैं। मुस्तकिल रोज़गार हैं और ऐसे ज़रूरतमंद है। अब तो लॉकडाउन में जो डेली वेजेस से काम करने वाले उनका भी रहना करना गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। वैसे लोगों गैर मुस्लिम्स को भी हमने टारगेट बनाया था लॉकडाउन के जरिए, जिसमें लाल दरवाज़ा वगैरह है, नसीम नगर है और शहर में भी मुख्तलिफ जगहों पर नॉन मुस्लिम्स का भी ख्याल रख के हमने उन तक भी कुछ पहुँचाया है। और रमज़ान में ख़ास तौर पर इंशाल्लाह रोज़ाना का ख़ास ख्याल रखते हुए सारे शहर में रमज़ान किट के नाम से हम एक किट बना रहे हैं, जिसमें 1 महीने का तकरीबन पूरा राशन रहेगा और उसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स जो खजूर वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं रोज़े के लिए, वो भी इसके अंदर हम शामिल करें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख मोहम्मद नबीर रहमान है, मैं अलखैर सोसाइटी चंद्रायन गुप्ता का सेक्रेटरी जमात इस्लामी का कारकुन। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं ऐसे कई तंजीमें जमात इस्लामिया है, अलखैर सियासी सोसाइटी है, अलखैर सोसाइटी भी है, इसमें ईसाइयों भी इनका साथ दे रहा है। हम आप लोग जितना ताउन कर रहे हैं, करीब अब तक 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा रकम की ताउन हो चुकी है राशन की, और इस माह रमज़ान के महीने की शुरुआत कल से होने वाली, इसके लिए भी पैकेज बनाया गया है। और TV11 भी आपसे अदब गुजारिश करता है कि आप किसी का हक़ ना मारे, जो वाकई में ज़रूरत है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है, और हम उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद हम ज़िम्मेदार शख्स को दीजिए, क्योंकि हमें भी दिन में 25 से 50 कॉल आते जा रहे हैं और हम भी उसकी क्रॉस चेकिंग करके इंक्वायरी कर जो मुकामी वहाँ पर तंजीमें हैं उनको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। और आप लोग से एक गुजारिश है, क्योंकि आप एक के बारे में मत सोचिए, आपके ऐसे कई फैमिलीज़ है जिसे काफ़ी मुसीबत हो रही है, और आप ऐसा ना करें कि वहाँ से भी राशन तकसीम हो रहा तो ले रहे, यहाँ से भी ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको मिल गया तो आप जिसके पास नहीं है उसके बारे में करिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है, आज के ज़माने में कोई एक गिलास पानी पिलाने की सोचता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात इस्लामिया की जानिब से, अलखैर सोसाइटी की जानिब से जो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक राशन तकसीम हो चुका है, और 1.5-2 करोड़ की बजट बना के रखे हैं और तकसीम करने के लिए। बल्कि मुसलमान नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, सारी दुनिया में गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। उसी तरह से इस्लाम में भी हो, जामिया इस्लामिया की जानिब से भी हो, हर बार जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बल्कि इसमें मुसलमानों को नहीं, हर मज़हब वालों को, जो गरीब गुरबा है, जो ज़रूरतमंद है, जिसे वाकई ज़रूरतमंद है, उन ऐसे लोगों के लिए तकसीम कर रहे हैं। तो TV11 भी आपसे गुजारिश करता है, हमारे कस्टमर के लिए 8142322214 पे कॉल कर सकते हैं। वाकई में आप इसके हकदार हैं, वाकई आप परेशान हैं। ऐसा ना करें आप रिजर्व में लेके रखने के लिए दूसरों का हक ना मारे, बल्कि ऐसे तंजीम दूसरे कई ऐसे तंजीम भी है, उन लोगों के पास भी आप अपना जो भी है सही आप लीजिए, हक दूसरों का हक ना मारे, ये अपील करते हैं। और फिर से एक बार TV11 की जानिब से हम मुबारकबाद देते हैं अलखैर सोसाइटी और जामिया इस्लामिया, जो इतना बड़ा काम, क्योंकि एक चीज़ किसी को तकसीम करना नामुमकिन है, और यहाँ पर मुसलसिल हम जब देखने आए, यहाँ पर इबादत भी हो रही है और काम भी हो रहा है, और लोगों को राशन तकसीम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर राशन है यहाँ पर, और पैकेज करके साफ़ सुथरे तरीके से, एक अच्छे से तरीके से तकसीम कर रहे हैं, ताकि ज़रूरतमंद को ज़रूरत से पूछे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और खैर व बरकत दे और अच्छे मुकाम पे पहुँचाए और सेहत भी दे, क्योंकि आज हिंदुस्तान में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलखैर सोसाइटी बताया गया है, जामिया निज़ामिया बताया, ऐसे कई जमात उलमा है, ऐसे कई तंजीमें हैं जो सामने आकर तकसीम करते जा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान में एक गंगा जमुना की तहजीब की निशानी कह सकते हैं, बल्कि यहाँ पर कोई एक मज़हब वालों को नहीं, हर मज़हब वालों को दिया जा रहा है। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की रकम की राशन की तकसीम हो चुकी है, और उन्हें शनाख्त कर
इंक्वायरी कर दिया जा रहा है। इसमें और हैरत वाली बात यह है, जहाँ पर थोड़े लोग ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोटोज़ लेकर वो कर रहे हैं, मगर यहाँ पर इंक्वायरी कर बनमुठी तकसीम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और हम अदबन गुजारिश करते हैं जो माली से आपके पास है तो आप भी ऐसे अपने बस्ती में, अतराफ में, अपने ख़ानदान में सबसे पहले आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में भी आप तकसीम करें। कैमरामैन मुजाहिद के साथ मैं सैयद हबीब, TV11 हैदराबाद। ओवैस साहब है, हम बात करते हैं, बल्कि हम जब से बात कर रहे थे कि शहर हैदराबाद और तेलंगाना रियासत के बारे में, ओवैस साहब ने अभी हमें बताया है कि बल्कि शहर हैदराबाद में जब हिंदुस्तान की बात निकली तो बल्कि शहर हैदराबाद नहीं, तेलंगाना रियासत नहीं, हमारे पड़ोसी जो स्टेट है आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी कई कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि ज़रूरतमंद और एक भूखे एक प्यासे को कहीं से भी चीज़ से ज़रूरत पड़ सकती है। तो ओवैस भाई से हम बात करेंगे। बताइए साहब, बल्कि शहर हैदराबाद के साथ साथ अदर स्टेट से आपको कहाँ से कॉल आया और वहाँ पर आप कैसे पहुँचे? ये वेस्ट बंगाल से एक खातून कॉल करे थे, उनके कई एक जान पहचान के लोग यहाँ करीब में मुकीम थे कुगड़े में, तो वो लोग बता रहे थे बिल्कुल उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई, उनके लिए खाना नहीं था। तो फौरी हम लोगों ने किट्स बनाया और उनके आधार कार्ड्स वगैरह मंगाए। तो हमने कोशिश की और फौरी उनको तहकीक करके पहुंचाने की कोशिश की। तो ऐसी एक वक्त कॉल आया था आंध्र प्रदेश से, भीमावरम वेस्ट गोदावरी, हमारे पहचानत के साहब फ़ोन करे थे। तो मोइनाबाद में 15 यूपी के लोग थे, उनको बिल्कुल खाना नहीं था, जितना था उनके पास 15 दिन में ख़त्म हो गया। तो फौरी हमने कांटेक्ट किया वहाँ के ज़िम्मेदार को और बताकर यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कराकर वहाँ से किट बनाकर फौरी उन तक पहुँचाने की कोशिश की। ये एक नेटवर्क रहने की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी ऐसा कर्नाटक से फ़ोन आया, यहीं ओपीगुड़े में कुछ लोग मुकीम हैं, कुछ लेबर, तो हमने तहकीक की, मालूम किया और उन लोगों का पता निकाले और हमने किट बनाकर उन तक पहुँचाने का काम किया है। इसके साथ साथ जो है, जो गैर मुस्लिम लेबर वगैरह है, हमने बराबर उन बस्तियों में भी गए और उन तक ये किट्स पहुँचाने, इंसानियत के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये समझते हैं कि उनको भी राशन पहुँचना चाहिए था। हमने जितना हो सकता गैर मुस्लिम को भी इन किट्स को पहुँचाने की कोशिश की। वैसा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसे खिदमत करने का आपको मौका मिला है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप तंग हो जाते हैं कि लोग हम बार बार फ़ोन करते रहते हैं जिसको ज़रूरत पड़े और आपको रोज़ सुबह शाम की जिम्मेदारी रहती है, तो क्या आप कैसे महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में बहुत 2-3 नौजवान साथ में थे, देखते देखते कई नौजवान हमसे जुड़े, कई लोग जुड़े। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो लोग भी जो है ना, जब ये काम देखे, ख़ासतौर पर ये घर के ओनर साहब जनाब शरीफ साहब भी, तो वो लोग इतना मुतासिर हुए और न सिर्फ मुतासिर हुए, वो नीचे का पोर्शन बराबर हमारे लिए फराहम कर दिए। फिर उनकी एक गाड़ी थी, ट्रॉली, सौदा लाने के लिए, किट्स पहुंचाने के लिए, वो गाड़ी भी दे दिए। तो एक एनकरेजमेंट भी दिए। हम साथ साथ इस काम को अंजाम देने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जो लोग फ़ोन करते हैं तो हम बराबर ऐसा, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ये मौका देता है। अल्लाह ताला हमें चुन लिया है ये काम के लिए। हम इस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं और बखुशी इस काम को अंजाम देने के लिए दिन रात हाजिर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अड़ोस पड़ोस ने भी लाखों रुपया जो है ना, जब ये काम महसूस करे, बहुत ज़्यादा अहम काम है, तो उन्होंने भी किट्स बनाया, बराबर उनके पहचान के लोगों तक भी उन्होंने पहुंचाया। तो एक दूसरे के साथ एंकरेजमेंट लेते हुए हमने अपना काम जारी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह नए नौजवान भी जुड़े और एंकरेजमेंट लेते गए, अपने अपने तौर पर जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ करते गए और पहुंचाने का काम, खिदमत का काम, पैकिंग का काम। इवन ये पूरा चावल जो है ना, आज हमारे ये लारी से कोई लेबर साथ में नहीं आया था, लारी के ये नौजवानों ने उतारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के एंकरेजमेंट के साथ हम लोग ये काम करते रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बल्कि जो अदर स्टेट से यहाँ पर आकर काम में रुक चुके हैं और यहाँ पर आके काम करें, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर तलाश हो रही है। बल्कि आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश से ऐसी जगह पर जहाँ से लोग, खास करके हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदुस्तान में जब भी एक गंगा जमुना तहजीब और इंसानियत का मिसाल दिया जाता है, जिसे शहर हैदराबाद कहा जाता है, तो शहर हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर
लोगों को गंगा जमुना की तहजीब और अखलाक का शहर हैदराबाद कहा जाता है। यहाँ पर कोई मज़हब नहीं, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, उसे इज़्ज़त से और हर वो चीज़ से नवाजा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर तलबा, कई नौजवान भी हैं जो अपना कीमती एक थोड़े नौजवान जो गैर ज़रूरी रोडों पर फिर अपने अपनी गाड़ियाँ सीज करा रहे हैं, मगर ऐसे नौजवानों के लिए एक अच्छा मैसेज है जो अपनी सवाब कमाने का मौका है। ये नौजवान और जो तलबा भी है जो स्टडी भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर है इसमें जो अपनी मतलब एजुकेशन करते हैं, MBBS डॉक्टर, हम उनसे भी बात करेंगे नौजवानों से, और ऐसे नौजवानों से वैसे नौजवानों को मैसेज देने लगेंगे। माशाल्लाह वो MBBS डॉक्टर रहने के बावजूद भी, और तलबा है, दूसरे लोग भी हैं जो अपना कीमती वक्त आकर यहाँ पर एक खिदमत करने का मौका मिल रहा है और नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। तो इस माह रमज़ान से पहले ही ये नेकी कमा रहे हैं, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा माह रमज़ान में भी कमाएंगे। तो हम डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, बताइए आप कैसा महसूस करें एक नौजवान होने के बाद लोग गैर जरूरी रोडों पर फिर कर गाड़ी फंस जा रही है, या कोई पुलिस के मार, या कोई घर से बेजार हो जा रहे हैं, तो आप ऐसे वक्त पे यहाँ पर करें तो नौजवानों को कैसा मैसेज देना चाहें और आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे तंगी हालात और पैंडमिक सिचुएशन में भी हम लोग को ये मौका मिला कि कुछ सवाब कमा सकें, हम लोगों को कुछ ज़रिया मिला। और क्या है, मैं जस्ट नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे राशन वगैरह जो भी है अगर हुआ तो उन लोग भी जुड़ जाए इसमें, या फिर बेहतर है अपनी हिफाजत के लिए घरों में ही रहे। मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, हमारे मामू के लिए हम जुड़ने का मौका मिला। मेरे को बहुत क्या करते हैं? मैं MBBS डेक्कन मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर। ये MBBS स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के डेक्कन कॉलेज, जो हैदराबाद का मशहूर और मारूफ कॉलेज है। डेक्कन कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का कहना ये है, तो TV11 भी कहता है कि कल से जो आज रात से बस चंद मिनट बाकी रह गए हैं, माह रमज़ान का महीना जो हमें इंतज़ार कर रहा था, जिसे हर किसी को बड़े बेकरारी बेचैनी से इंतज़ार था, उस वक्त की घड़ी आ चुकी है। बस चंद घंटे बाकी रह गए जो माह रमज़ान के महीने में हम शिरकत करने जा रहे हैं। तो हम खास करके हम TV11 के ज़रिए मैं अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूँ, माँ बाप से अपने बच्चों की हिफाजत करें, गाड़ियों की चाबी ना दे, जहाँ तक हो सके घर में बैठकर इबादत कराए और तिलावत करें, कुरान की दुरूद का दस्ता डालें और ऐसी इबादत करें, मगर गैर ज़रूरी तरकारी के नाम से या सौदे के नाम से बाहर जाकर कानून को वायलेशन ना करें, गाड़ियाँ सीज ना करें, ना खुद परेशान हो ना घर वालों को परेशान करें, क्योंकि ये महीना जो है नेकी कमाने का है। खिदमत अंजाम करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी की खिदमत करें, अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों की खिदमत करें, क्योंकि हर वक्त नेकी है, मगर इस माह रमज़ान के महीने में नेकियां में इजाफा हो जाता है। तो एक नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका है, दुनिया में लोग मिसाल बन जाना चाहिए कि मुसलमान नौजवान माह रमज़ान के महीने में अपने माँ बाप की खिदमत करता, पड़ोसी की खिदमत करता, बस्ती वालों की। आप ऐसा नहीं है कि अब अपने माँ बाप की खिदमत करें, बहरहाल अड़ोस पड़ोस आपका हक़ बनता, आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक हो सके हम खिदमत करके, हमारी पहचान हमारे अखलाक से होती है कि हमारे अखलाक बने। गैर ज़रूरी आप ना बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क हर वक्त लगाइए, और आपको मास्क लगाने के साथ साथ कर्चिप भी बन सकते हैं, ये नहीं है आप यही मास्क लगाना, कर्चिप भी बन रह सकते हैं। और जहाँ तक हो सके डिस्टेंस मेंटेन करिए, और जब भी घर से बाहर निकलते कोई भी ज़रूरी काम से आप तो बाहर पहले आते कि हाथ पैर धोए, चाहे लाइफबॉय साबुन से हाथ पैर धो के अंदर आए, और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंस, ये थोड़े दिन का ये है हमारे साथ जो वायरस है, इस वायरस से हम मुकाबला करें, इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। क्योंकि दुनिया में जब ये जहरीली कोरोना वायरस कोविड-19 फैला था, लोग हिंदुस्तान के बारे में बहुत सोच रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में परेशानियाँ थी, अगर हिंदुस्तान ने यहाँ की आवाम मुँह तोड़ जवाब देते हुए अच्छे से कंट्रोल में लाया है, और मेहनत करना चाहिए और कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी के बाद भी माशाल्लाह आज भी हिंदुस्तान कंट्रोल में है। हम और भी कंट्रोल में करने के लिए हिफाजत करें, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। और ऐसे एक्टिविटीज़ कामा जो कर रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लोगों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर एक दुआ मिलती, क्योंकि नौजवान भी जो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, अल-खैर सोसाइटी है, जामिया निज़ामिया है, ऐसे कई तंजीम दूसरे भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो काम कर रहे हैं, जिसका TV11 कवरेज करके आपको बता रहा है। और उम्मीद रखते हैं हम जितनी बात आप सुने उसमें अमल करने की तौफीक है। हम कैमरामैन मुजाहिद के साथ मैं सैयद हबीब, TV11 हैदराबाद।